So let's begin with this same topic, numericals on characteristics of solid waste. Okay. So we were in last lecture we have done some numericals and lively we have taken numerical also. So before moving that, uh, I think this one is yeah. Uh, Let us take this numerical. Determine the chemical composition. Determine the chemical composition of the organic fraction of the waste described in table. This okay. So here we have to go for the organic fraction of the waste described. Okay. So when we say organic fraction, then definitely it comes carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur. ये सारी चीजें उसमें आ जाती है. Okay. In question, composition is given as well as this wet weight is also given. Wet weight for what? For this respective composition. For food waste, it is 9. For paper, it is 34. For cardboard, it is 6. For plastic, 7. Textile, 2. Rubber, zero point 0.5. Leather, zero point 0.5. Yard waste, 18.5. Wood, 2. Inorganic, 2. If you add everything, if you add everything, you will get the total wet weight of your solid waste. Okay. In addition to this, in this table, one more concern is given here. Moisture content is given. Okay. So moisture content for whom? For moisture content for this respective compositions. Just like from food waste is 70, paper it is 6. Like we have seen in a previous question as well. Cardboard 5, plastic 1, textile 10, rubber 0, leather 20, yard waste 65, wood 20, and inorganic matters are zero point 0.5. Okay, so this is your question that you have to find out the chemical composition. When we say chemical composition, this question comes from the ultimate analysis. ये आपका ultimate analysis का question है, right? So for that, you require this typical data on the ultimate analysis of the combustible component in residential municipal solid waste. ठीक है. अगर आप कोई भी वेस्ट को मतलब इंसिनरेट करते हैं या आप कंबस्ट करते हैं तो क्या हो जाता है वो ये सारे फ्रैक्शंस में डिवाइड हो जाता है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऐश. ये उसके कंपोनेंट्स है. इस कंपोनेंट्स में आफ्टर बर्निंग या आफ्टर कंबशन वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं. इफ वी टॉक अबाउट दिस फूड वेस्ट, तो यू कैन सी फूड वेस्ट जो रहेगा आपका वो देखिए परसेंट बाय वेट में. ठीक है, परसेंट बाय वेट इन अ ड्राई बेसिस. सो फूड वेस्ट क्या हो जाएगा, जिसमें 48% आपका कार्बन रहेगा. Then hydrogen is 6.4, oxygen 37.6, nitrogen is 2.6, sulfur 0.4, and ash is 5. Similarly, if you see for paper, so it is 43.5, 6, then oxygen is 44, nitrogen is 0.3, sulfur is 0.2, ash is 6. Similarly, you can go for cardboard, plastic, textile, rubber, leather, yard waste, wood, ग्लास, मेटल्स, डर्ट एंड एश. तो ये आपका टिपिकल वैल्यू दिया रहेगा. ओके, दिस मे बी अ चांस दैट दिस विल गिव यू इन द एग्जामिनेशन. मतलब ये डेटा आपको एग्जामिनेशन में दे सकता है. दे मे बी अ चांस फॉर दिस. ओके, सो लेट अस सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. So this is your composition, this is your wet weight. In addition to this, in the question, moisture content is also provided. Okay, uh, if you see this, here we have ignored the inorganic matters. We have completely ignored this inorganic matter. Okay. So अगर आप उसको छोड़ दो, then if you take this wet weight composition, so this will be 79.5. Okay. Based on this, based on that moisture content, first you have to calculate the dry weight in kg. So in this diagram, sorry, in this table you can see the wet weight is converted into your this dry weight. ये हमने dry weight में हमने क्या किया, इसे change कर लिया. Now how you have changed this in a dry weight? Similar pattern. जैसे आपका 9 है, ठीक है, 9 माइनस आपका मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है आपका फूड वेस्ट में, इट इज अप्रोक्सीमेटली 70%. सो व्हाट यू विल डू, 9 माइनस 9 into 0.70. ठीक है,
So this will be your calculation for this. आप जब ऐसा करोगे, सॉरी, जब आप ऐसा आप कैलकुलेशन करोगे, देन आपको क्या होगा कि ये आपको ड्राइव वेट अवेलेबल हो जाएगा. आई रिपीट, 9 minus 9 into 0.7, that will be give you the dry weight, that is 2.7. ठीक है, ये एक बार आपने कैलकुलेट किया, then similarly you have to calculate for everything, paper to wood. आप सभी का आप उसमें क्या कर लीजिए, उसका ड्राई वेट निकाल लीजिए, एंड देन यू सम अप दिस. ओके, ये जितना भी आपका है इन सबको आप आराम से सम अप कर लेंगे. आप इसको सम अप कर लीजिए. ठीक है. सो something is getting wrong today. It's not working. Okay. I just telling you that आप जब सब इस सबको आप ऐड कर लेंगे, so this will be your 58.1. सो ये एडिशन आ गया हमारे पास में, ये एडिशन आ गया हमारे पास में. इन दोनों के बेसिस में आप मॉइस्चर कंटेंट आराम से निकाल सकते हो. हाउ यू विल गेट मॉइस्चर कंटेंट, ये माइनस ये डिवाइड बाय अगेन द वेट वेट, दिस विल गिव यू द मॉइस्चर कंटेंट. ओके, सो विल मूव फर्दर. In front of that you can see this is the composition in the terms of what, when we combust anything, when we burn anything, so that is converted into various fractions. So what are the various fractions? Fractions are like carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur and ash. Okay, so आप देखिए ये जो भी आपका कंपोजिशन आ रहा है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस ड्राई वेट. ये आपका जो भी कंपोजिशन आएगा दैट इज कमिंग जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ड्राई वेट. ये आपके ड्राई वेट के कारण आ रहा है. ठीक है. नाउ हाउ दिस 1.3 इज कमिंग, दिस इज द क्वेश्चन. ये आपका 1.3 कैसे आ रहा है, दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन. सो फॉर दिस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो थ्रू अगेन दिस टेबल. You can see this food waste. Let us, I am underlying this one. Just focus on this. Just focus on this highlighted portion. Let us talk about first about the carbon. Okay, carbon is 48. So आप देखिए carbon 48 है. So what you will do, 2.7 multiply by 48. I repeat, 2.7 multiply by 48. So this will give you, divide by 100. So this will give you the percentage composition of the carbon. I repeat, 2.7 multiplied by 48 divided by 100. This will give you the composition of carbon content. Similarly, if you go for this paper, so 32 multiplied by this 43.5. I repeat, 32 multiplied by this 43.5. अगर आप ऐसा कैलकुलेशन करोगे, then you will came to know that about these things. This will be, the calculation will be 13.9. I repeat, paper is your 43.5 divided by 100 multiply by 32, you will get 13.9. Similarly, for cardboard, let us see cardboard, it is 44. So what you will do, 44 divided by 100, okay, multiply by 5.7, this will give you 2.57. Then next is plastic. Similarly, for plastic it is 60. Okay, this is 60. So what you will do, 60 multiply by 6.9 divided by 100, this will give you 4.16. तो हमने क्या किया, ये जो भी आपका कॉलम है, आपको इस कॉलम के साथ में, ये कार्बन वाले कॉलम के साथ में आपको क्या करना है, उसे मल्टीप्लाई करना है एंड डिवाइड बाय 100 करना है. सो दिस विल डिवाइड बाय 100 एंड देन मल्टीप्लाई बाय दिस ड्राई वेट. सो दिस विल गिव यू द परसेंटेज ऑफ कार्बन. ठीक है, ये आपका कार्बन कंपोजिशन का परसेंटेज देगा. ठीक है. देन आफ्टर दिस
आफ्टर दिस, एक बार जब ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सम अप एवरीथिंग। ये आपका जब ये हो गया, आपने सारा कैलकुलेशन कर लिया ये कॉलम में, देन आपने क्या करना है, इसको आपने सम अप कर देना है। व्हेन यू सम अप एवरीथिंग यू विल गेट दिस वैल्यू 27.37, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आई रिपीट, जब आपने कॉलम को कैलकुलेट कर लिया, आपने लिख लिया, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सम अप एवरीथिंग, आप इसको ऐड कर दीजिए एंड देन यू विल गेट 27.37। सिमिलरली जैसा हमने कार्बन के लिए किया है, सिमिलरली वी विल डू फॉर दिस हाइड्रोजन। अब वापस से अगर मैं जाऊं हाइड्रोजन में, तो यू कैन सी हियर हाइड्रोजन का कॉलम दिया हुआ है। फॉर फूड वेस्ट इट इज 6.4। ठीक है, फॉर फूड वेस्ट इट इज 6.4। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज योर ड्राई वेट। ठीक है, ये 2.7 मल्टीप्लाई बाय कितना था, 6.4, तो ये हो जाएगा 6.4 डिवाइड बाय 100। सो वट एवर द आंसर विल बी, दैट इज 0.17। तो ये आपका कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगा। सिमिलरली इफ यू गो फॉर पेपर, इट इज 32 ड्राई वेट, then you can see here for paper the hydrogen percentage is only 6. So what you will do here, 32 multiply by 0.06, यानी कि मैं बोल रहा हूँ 6 डिवाइड बाय 100। 6 डिवाइड बाय 100 हम करेंगे तो इट इज 0.06 multiply by 32. This will give you 1.92. So similarly on the same way you have to calculate for cardboard, you have to calculate for plastic, you have to calculate for textile, then rubber will be 0.05, leather will be 0.03, yard waste will be 0.39, then wood waste will be 0.10. Once you calculate everything, then आपको क्या करना है, you have to add this table. Okay, once you add this table you will get the value 3.61, या आपको 3.61 यहाँ पे मिल जाएगा। Okay, similarly we'll go for the oxygen. When we say for oxygen, तो आप देखो ऑक्सीजन के लिए कितना दिया हुआ है, for food waste it is 37.6. Okay, then 37.6 multiplied by 2.7. I repeat, 37.6 multiplied by 2.7 divide by, if you divide by 100, this will give you this value in a 1.02. Okay. Similarly, what we'll do? Similarly, we'll do for this paper, cardboard, plastic, टेक्सटाइल, रबर, लेदर, फूड, यार्ड वेस्ट एंड फूड वेस्ट, और आपकी जो वैल्यू मिलेगी आपको कुछ इस तरह से मिलेगी। ओके, वंस यू गेट फॉर ऑक्सीजन यू हैव टू जस्ट सम अप एवरीथिंग। आपके पास में जो भी वैल्यू आ गई है इसे आप सम अप कर दीजिए। वंस यू सम अप दिस यू विल गेट दिस आंसर 22.95. ओके, सो सिमिलरली on the same direction you have to calculate for nitrogen, you have to calculate for sulfur, you have to calculate for the ash. आपको ये तीनों के लिए भी वैसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, once you calculate everything then you can see this is the sum of value. हेलो सर। सर ये जो टेबल में जो भी वैल्यूज है कार्बन हाइड्रोजन का, तो सर ये मतलब परसेंटेज में कि मतलब कौन से, see this is in the percentage by weight, this is percentage by weight, ये सभी परसेंटेज में दिया हुआ है। ठीक है, ये सारा का सारा आपका परसेंटेज में दिया हुआ है। इफ यू ट्राई टू सम अप दिस लाइक दिस, आप कोई कैलसी अगर निकाल के चेक करोगे तो यू कैन ट्राई दिस। आपका ये जो है, आई एम टॉकिंग अबाउट फूड वेस्ट, मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ दिस इज फॉर फूड वेस्ट, सो दिस इज गिविंग यू 100%, जस्ट ट्राई इट। 48 plus 6.4 plus 37.6 plus 2.6 plus 0.4 plus 5, this will give you 100%। ये हो गया परसेंटेज वाइज। सिमिलरली अगर मैं पेपर की बात करूंगा तो पेपर का भी वही सीन है, आप सब इसको ऐड कीजिए, यू विल गेट दिस 100%। सिमिलरली अगर मैं वुड की बात करता हूं तो आप देखिए
ये भी आपका 100% आएगा। लेट अस टॉक अबाउट दिस डर्ट ऐश। तो डर्ट ऐश भी देखिए, इन सब का एडिशन कीजिए, दिस विल बी इन 100%। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर फूड वेस्ट को अगर हमने कंबस्ट किया या हमने बर्न किया या हमने इंसिनरेट किया तो कौन कौन से फ्रैक्शन में डिवाइड होगा, उसका अल्टीमेट तो कुछ अल्टीमेट फैक्टर्स तो कहीं कुछ होगा ना, मतलब एट लास्ट वो किस में कन्वर्ट होने वाला है। फूड वेस्ट विल बी कन्वर्ट इनटू होम, कार्बन में जाएगा, हाइड्रोजन में जाएगा, ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा, नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगा एंड सल्फर में कन्वर्ट होगा। जो रिमेनिंग पोर्शन रहेगा, जो रेसिड्यू रहेगा, दैट विल बी योर ऐश। ओके, तो ये आपका कुछ ऐसा था। जस्ट लाइक अगर हम ये फूड वेस्ट देखिए, फूड वेस्ट में सबसे ज्यादा क्या होगा, कार्बन। वो कार्बन है क्या, वो क्या बायोडिग्रेडेबल मेटल्स है। बायोडिग्रेडेबल मेटर में मतलब सॉरी कंबस्टिबल मेटल्स में कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन आपका हमेशा हाई रहता है। नॉट अ बायोडिग्रेडेबल, इट्स अ कंबस्टिबल मेटल, तो उसमें आपका कार्बन वैल्यू ज्यादा रहेगा। ठीक है, सो लाइक दिस ये आपका 100% में दिया है पूरा का पूरा। देन उसके बेसिस में ऑन द परसेंटेज बेसिस ओनली वी आर टॉकिंग हियर। कहने का मतलब है अगर मैं फूड वेस्ट की बात करता हूँ, अगर वो ड्राई वेट आपका 2.7, ये अगर पूरा सॉलिड वेस्ट है, राइट, ये अगर आपका पूरा सॉलिड वेस्ट है, ठीक है, तो इसमें से आपका जो ड्राई वेट का कंटेंट है मतलब कितना है, अगर आपका टोटल आपका वेट वेट 79.5 है तो उसमें ये इंडिविजुअल का आपका वेट दिया हुआ है। ठीक है, अब इसी के बेसिस में हमने क्या किया है कि हमने ड्राई वेट को कैलकुलेट कर लिया है बेस्ड ऑन द मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, बेस्ड ऑन द मॉइस्चर कंटेंट वी हैव कैलकुलेटेड दिस ड्राई वेट। फ्रॉम दिस सॉलिड वेस्ट वी कैन से फॉर फूड वेस्ट का जो ड्राई वेट होगा दैट इज 2.7। जब इस 2.7 को आप बर्न करोगे तो वो कौन कौन से पोर्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, so that will be converted in this parts, in this composition, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, ash. Okay, if you try to add everything, अगर आप इसको ट्राई करोगे ऐड करने का, so 1.3 plus 0.17 plus 1.02 0.07 plus 0.01 plus 0.014, तो ये जो आपका समेशन है ये कितना होना चाहिए, this summation will be equals to this 2.7। आपका ये जो समेशन है ये कितना होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए 2.7। सिमिलरली इट विल बी वर्क फॉर एवरीवन, दिस एवरी इंडिविजुअल के लिए ऐसे ही काम करता है। कहने का मतलब है कि हमारा जो भी वेस्ट है उसको हमने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऐश में हमने कन्वर्ट कर दिया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस, कि टोटल सॉलिड वेस्ट में कार्बन कंटेंट कितना है आपका। सो कार्बन कंटेंट इज 27.37। आपका टोटल हाइड्रोजन कंटेंट कितना है, दिस इज 3.61। ऑक्सीजन कंटेंट कितना है, दैट इज 22.95। नाइट्रोजन कंटेंट कितना है, दैट इज 0.54। सल्फर कंटेंट कितना है, दैट इज 0.11। नाउ एट लास्ट व्हाट इज द ऐश कंटेंट, जो ऐश कंटेंट इज योर ऐश कंटेंट इज 3.48। तो हमने क्या कर लिया कि इंडिविजुअल कंपोजिशन के लिए कितना परसेंटेज वो आ रहा है हमने वो उसको कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, सॉरी ड्राई वेट कैसा कैसा है, आई एम सॉरी, दिस इज अ परसेंट, दिस इज नॉट अ परसेंट, दिस इज अ ड्राई वेट एंड दिस कैलकुलेशन इज डन ऑन द परसेंटेज बेसिस। ओके, सो ये आपका आ जाएगा इन केजी, ये इन टर्म्स ऑफ केजी आपने क्या निकाल लिया, उसका कंपोजिशन का वेट्स निकाल लिया। नाउ what we are trying to say here, we now want to determine how much hydrogen and oxygen in kg there are in the waste sample। ठीक है, हमारे वेस्ट सैंपल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने अमाउंट में अवेलेबल, इन केजी में कितना अवेलेबल है, वो हमें कैलकुलेट करना है। वी डू दिस बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। हमें ये किस तरह से सॉल्व करना है, हमें ये इक्वेशन को रख के सॉल्व करना है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला सेइंग, ये आपका फॉर्मूला कहता क्या है, द टोटल मॉइस्चर इन केजी। नाउ दिस इज टोटल मॉइस्चर इन केजी डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। नाउ टोटल मॉइस्चर इन केजी करके हम बात करते हैं तो ये कहाँ से आएगा, फ्रॉम वेयर दिस विल कम, दिस विल कम फ्रॉम योर दिस टेबल। ये कहाँ से आएगा, ये इसी टेबल से आएगा। वेट के लिए आपका 79.5 है, ड्राई के लिए आपका 58.1 है। 79.5 minus 58.1 अगर आप करोगे सो यू विल गेट द मॉइस्चर कंटेंट।
वो आपको क्या मिल जाएगा, आपका मॉइस्चर कंटेंट कितना अवेलेबल है वो मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर। व्हाट डू यू मीन बाय मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर? वाटर प्योर फॉर्म जो बोलते हैं दैट इज योर H2O। आई रिपीट, द प्योर फॉर्म ऑफ वाटर इज, हियर आई एम राइटिंग H2O। यानी कि यहाँ देखिए कितने एलिमेंट है, दो एलिमेंट, एक हाइड्रोजन हो गया, दूसरा आपका ऑक्सीजन हो गया। अब हाइड्रोजन में कितने, देखो 2 अवेलेबल है, एंड ऑक्सीजन में कितना अवेलेबल है, 1 अवेलेबल है। आई रिपीट, H2O, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका 1 ऑक्सीजन है। तो मोलिकुलर वेट की अगर मैं बात करूंगा तो व्हाट विल बी द मोलिकुलर वेट? एनीबॉडी कैन टेल मी दैट? व्हाट विल बी द मोलिकुलर वेट ऑफ H2O? ये H2O का मोलिकुलर वेट क्या हो जाएगा? 18। H2 के लिए हो जाएगा 1 + 1 दैट इज 2। ओके, फॉर ऑक्सीजन इट इज 16। So how, so this will be 2 + 16, so ये टोटल कितना हो जाएगा? This will be 18। Are you getting me? So this is the molecular weight of H2O। तो आपको क्या करना है कि 18 की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पुट अप करना है, ठीक है, यहाँ पुट अप करना है। इंस्टेड ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर दैट विल बी नाउ 18। नाउ मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना रहेगा? 2, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, राइट। सो आपका जो भी वैल्यू आएगा वो आप यहाँ पे नोट करो। सिमिलरली वी डू द कैलकुलेशन फॉर ऑक्सीजन बाय यूजिंग इक्वेशन, विच इक्वेशन? द सेम इक्वेशन, बट चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे देखो यहाँ पे अब आ गया ऑक्सीजन। क्यों ऑक्सीजन? क्योंकि हमें अब निकालना है ऑक्सीजन के लिए। प्रीवियसली हमने निकाला फॉर हाइड्रोजन, लेकिन टोटल मॉइस्चर विल बी सेम, आपका मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर विल बी सेम। ओके, ये आपका दोनों भी आपका सेम रहेगा। now the amount of hydrogen and oxygen should be added to the H and O in the waste when we are calculating chemical composition with water। now ये जो एलिमेंट है हमने हमारे प्रीवियस ये वाले स्लाइड में हमने देखा कि यहाँ पे इंडिविजुअल के लिए हम लोगों ने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऐश। हमने क्या किया, ये जो आपका समेशन वाला वैल्यू है, यही समेशन वाले वैल्यूज को हमने क्या किया, यहाँ पे पुटअप किया। यू कैन सी 27.37, 3.61, 22.95, 0.54, 22.37, 3.61, 22.95, 0.54, 0.11, 0.48। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने सेम वैल्यू को यहाँ पे रख दिया, बट दिस इज द वेट ऑफ वाटर इन द प्रीवियस टेबल, यानी हम ये टेबल की बात कर रहे थे। ठीक है, नाउ वेट ऑफ वाटर आफ्टर एडिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, हम जैसे हमने वाटर ऐड किया तो हमने क्या ऐड कर दिया, हमने 2 हाइड्रोजन को इंट्रोड्यूस किया और 1 ऑक्सीजन को हमने इंट्रोड्यूस किया। सो द बेसिक चेंजेस विल बी वेयर, अगर इस पूरे सॉलिड बेस में, इस पूरे कंपोजिशन में अगर मैंने H2O को इंट्रोड्यूस किया, सो चेंजेस कहाँ पे आएंगे? सब में चेंजेस आने चाहिए या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन में ही चेंज आएगा? यस, ऑफ कोर्स द चेंजेस will be occur only in 2 elements, that is your hydrogen and oxygen। यही दो में आपके चेंजेस होंगे, लेकिन चेंजेस कौन से वैल्यूज में होगा? सी द चेंजेस विल बी इन दिस वैल्यू। आपका जो कार्बन था उसमें कोई चेंज नहीं है, सो वैल्यू विल बी सेम 27.37। हियर आल्सो इट इज ऑलमोस्ट सेम 22.37। ये 37 होना चाहिए था, आई एम सॉरी, दिस इज बाय मिस्टेक, इट हैपेंस। ओके, नाउ नाइट्रोजन के लिए देखो 0.54, सो यहाँ पे भी 0.54। सल्फर के लिए 0.11, तो यहाँ पे भी आपका 0.11। ऐश के लिए 3.48 था, तो यहाँ पे भी 3.48 है। ठीक है, लेकिन चेंजेस किस में होगा? हाइड्रोजन में चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट, 2 हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। सो अर्ली इट वाज लाइक 3.61, early it was 3.61, it is 3.61 now it will be get change 3.61 प्लस, अभी इसमें क्या हो जाएगा, 3.61 प्लस कौन सी वैल्यू आ जाएगी? यहाँ की वैल्यू आ जाएगी। हमने जो यहाँ कैलकुलेट किया है वो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, सो लेट अस ट्राई दिस। टोटल मॉइस्चर इन केजी कितना है बताइए जरा, कैलकुलेट करो। मॉइस्चर कंटेंट कितना आ जाएगा जरा बताओ मुझको।
21.4, ठीक है। तो यहाँ पे मॉइस्चर की जगह पे क्या लिखना है आपने, 21.4, ठीक है। नाउ मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर इज हाउ मच, 18, ओके। और यहाँ पे मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन हाउ मच, 2। तो फटाफट थोड़ा जल्दी से कैलकुलेट करो एंड बताओ कि आंसर कितना होगा। फाइव 5.99 sir. 5.99 is the total. 3.61 plus how much? 2.37. 2.37. 2.37. It will be 2.38. yeah. It will be 2.37. 3.61 plus 2.37. This will give you the total water content. No, sorry, total hydrogen amount. That will be 5.99. Okay. Now, अब ऑक्सीजन में इसका कोई रोल रहने वाला है क्या? I repeat, ऑक्सीजन में इसका कोई रोल रहने वाला है हाइड्रोजन का? नो, देयर इज नो रोल ऑफ दिस हाइड्रोजन ऑन दिस ऑक्सीजन पैरामीटर। सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, आपको वापस से इसमें जाना पड़ेगा आपके इस फॉर्मूले में, एंड अगेन यहाँ पे देखिए आपका मॉइस्चर कंटेंट कितना है, इट इज 21.4, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मोलिकुलर वेट क्या है, मोलिकुलर वेट इज 18। नाउ molecular weight of oxygen, how much it is? 16, right? So 21.4 divided by 18, then multiply by 16. तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, जरा देखो जरा। 19.02. Good, good, good. It is 19.02. So it means that कहाँ गया मेरे पास, हाँ, it means that this 22.95 plus 19.02, this will give you the answer that is 42.00, ठीक है। तो this table shows for the completely dry, this table shows the completely for ड्राई, ये आपका ड्राई केस के लिए था पूरा का पूरा, लेकिन जैसे ही हमने उसमें वाटर ऐड किया तो वाटर जो ऐड करेंगे तो किस में फर्क पड़ेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। सो द वैल्यू विल बी चेंज इन दिस वे। सो ठीक है, सो वेट ऑफ वाटर एडिंग HNO, you will get that table, that values. Now this is a molar composition. Now molar composition की जब हम बात करते हैं, so again कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कौन सा है ये प्रीवियसली यही स्लाइड से आ रहा है, ठीक है। देन हमने क्या लिखा, एटॉमिक वेट लिखा उसका। तो एटॉमिक वेट में कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, नाइट्रोजन 14 होता है, सल्फर आपका 32 होता है। तो दिस इज योर एटॉमिक वेट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस मोल विदाउट वाटर एंड विद वाटर। तो कार्बन का कितने मोल्स आए हैं इसमें, आपको कैसे पता चलेगा? आपके कार्बन के कितने मोल्स हैं आपको कैसे पता चलेगा? आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए? यू हैव दिस वैल्यू, weight of water adding hydrogen and oxygen. You are having two tables now, weight of water in dry condition and weight of water adding water, यानी without water and with water, ठीक है। ये दो टेबल आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल है प्रीवियसली भी, ठीक है। You are having both the tables, this column number 1 and this column number 2. Column number 1 is without water and column number 2 is with water. So here you can again say this column number 3, column number 4, and this is without water, this is with water. अभी कार्बन का देखिए, it is 12.01. Now what you have to do, 27.37 divided by 12.01. If you calculate this, you will get this value 2.279. अब देखो यहाँ पे आपको सेम वैल्यू था, so you will get the same value 2.279, ठीक है। कार्बन का आपको सेम मिलेगा। आपने क्या करना है, you have to divide this value 27.37 divided by 12.01, you will get this values,
Okay. Similarly, go for hydrogen. हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट है 1.01. सो अगर हम बात करेंगे इसकी हाइड्रोजन की, हियर इट इज 3.61, divide by 1.01, you will get 3.575. Similarly, here it is 5.99, divide by 1.01, you will get here 5.933. Okay. वैसे ही हाइड्रोजन के लिए जैसे कि हमने, वैसे ही ऑक्सीजन के लिए करेंगे. So for oxygen it is 22.95, divide by 16, you will get 1.434. Similarly, you have here value of 42 for oxygen, then you have to divide by 16, you will get the value 2.625. ठीक है. वैसे ही हम नाइट्रोजन के लिए करेंगे सेम पैटर्न. ओके. नाइट्रोजन के लिए है आपका 0.54, you divide by 14.01, you will get 0.038. Similarly, you will get for within water, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का चेंजेस नहीं है, तो वैल्यू विल बी सेम. नाउ फॉर sulfur it is 3.48, divide by 32.07, you will get the value 0.003. So this is the normal calculation which is done. See, the numericals very lengthy, लेकिन आपको steps ध्यान में रहेगा तो you can easily calculate the ultimate analysis values. ठीक है. Once we have done this, now you have to be normalized mole ratios. आपको क्या करना है? Normalize mole ratio. If you remember your question, तो क्वेश्चन में क्या बोला था? Determine the chemical composition or organic fraction of the waste described in table with and without sulfur and with and without water. ठीक है. तो आपको ये क्वेश्चन दिया गया था, अब उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं. अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि आपका जो नाइट्रोजन है, हम इसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं अभी. तो आपका जो नाइट्रोजन है, लेट अस सी दिस मोल्स रेशियो without water considering N. Now you do like this. Again we have this two tables. This column number 1 and this column number 2. अभी जो आपका कार्बन है, कार्बन को क्या करेंगे? जैसे 27.37 है, will multiply with 2.279. If somebody take your calculator and multiply it, 27.37 multiply by your this value 2.279. So this will be, how much it will be? 59.2 divided by 2.279. Something is getting wrong. 59.2. Something I missed here. Let me check. Carbon, nitrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, ash. 27.37, 27.37. Okay. 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 2.27. 2.27. यहाँ कुछ नहीं है. क्या है? 27.37 multiply करें 2.27. Same like that.
6 multiply no 0.27 Something is getting wrong in my answer. मैं थोड़ा सा देखता हूँ इसको. Something is getting wrong. Okay. Normalized mole ratio. I have done this. Divided by 1. This is 1. Okay. एक मिनट. I then. 127. Okay. Now I got it. I am sorry for this delay. Now, ये जो आपका वैल्यू आ रहा है 59.2 फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग? इट इज कमिंग फ्रॉम दिस टेबल ओनली. आपका जो ये जो टेबल दिख रहा है इस टेबल से ही आ रहा है. लेट मी शो यू हाउ दिस वैल्यू कम्स. हियर वी आर ट्राइंग टू नॉर्मलाइज द मोल रेशियोज. हम यहाँ पे हमारे मोल रेशियो को नॉर्मल कर रहे हैं. हम किसके बेसिस में नॉर्मल कर रहे हैं? हियर वी आर ट्राइंग टू नॉर्मलाइज विद द हेल्प ऑफ दिस नाइट्रोजन. ठीक है. तो व्हाट विल डू, हमारा जो 2.279 इसको हम क्या करेंगे? नॉर्मलाइज कर रहे हैं. सो नॉर्मलाइज हम कर रहे हैं. सो यू कैन सी हियर इट इज 1. हियर इट इज 1. ये 1 कौन सी केस में आएगा? जब सेम वैल्यू को, मतलब इस वैल्यू को हम लोग 0.038 से जब हम डिवाइड करेंगे, देन दिस विल बी इक्वल्स टू 1. ओके. कहने का मतलब है कि नाइट्रोजन का जो वैल्यू है 0.038, इसी को अगर मैं डिवाइड बाय 0.038 करूंगा, so this will give you value 1. so what we'll do, we'll keep this value in this. ठीक है. लेकिन अगर कोई इक्वेशन में हमारा एक मोल चेंज हो रहा है, हमारा अगर हमने नाइट्रोजन को हमने स्टेबल किया है, इसका मतलब क्या होगा? वो इक्वेशन में उसे बैलेंस करना बहुत जरूरी है. ठीक है. नंबर ऑफ मोल्स इक्वेशन में बैलेंस करना जरूरी है. इसके लिए क्या होगा? वी हैव टू बैलेंस विद एवरीवन. बैलेंस विद एवरीवन, इट मींस दैट व्हाट? It means that this 2.279 divide by, जैसे हमने previously इसको divide by 0.038 किया है, so you will divide by this 0.038. Once you do like this, 2.279 divided by 0.038, this will give you this value. आपको ये वैल्यू जो आएगी, this will be 59.2. I repeat, हमने नाइट्रोजन को यहाँ पे बैलेंस किया, उसको हमने 1 मोलार लेके आ गए. जब उसको हमने 1 मोलार किया, जब हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे, तो ये जो बाकी के जो एलिमेंट्स है उसके भी मोल्स में चेंजेस आएंगे. तो वो जो चेंजेस आएंगे किस तरह से होंगे? अगर इसको हमने डिवाइड बाय 0.038 किया है, तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स वहां पे प्रेजेंट है उनको भी डिवाइड बाय 0.038 हमें करना पड़ेगा. ओके. Once we do like this, this will give you 59.2. Let us go for this. So divide by 0. If somebody is doing in calculator, please add, क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे तो हमें थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा. So if we divide 38, okay, same way 0.03 divided by 0.038, this will give you 0.1. तो हमने क्या किया? हमने वैल्यूज को कैलकुलेट किया है मोल रेशियो विदाउट वाटर कंसिडरिंग एंड. यहाँ पे हमने नाइट्रोजन को हमने न्यूट्रलाइज किया हुआ है. यू हैव डन दिस फॉर दिस विदाउट वाटर कंसिडरिंग. नाउ व्हेन वी ऐड द वाटर, हमने जब यहाँ पे वाटर ऐड किया है तो उसके लिए भी हमें कैलकुलेट करना जरूरी है. इन दैट केस ऑल्सो यू आर हैविंग नाइट्रोजन इक्वल्स टू 0.038. तो सेम वे जहाँ पे हमने इसमें कैलकुलेट किया था, वैसे ही हम सारे कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेंगे. Once you do this,
आपका मोल रेशियो विदाउट एंड वाटर कंसिडरिंग एंड, या आपने विदाउट वाटर एंड विद वाटर आपने ये कैलकुलेट कर लिया. सेकेंडली इफ यू सी जैसे हमने नाइट्रोजन में किया था सेम वैसा हमने सल्फर में भी किया अभी. ठीक है, सेम वैसा हमने क्या किया, सल्फर में किया. सल्फर में देखो, सल्फर की वैल्यू आप देखोगे तो यहाँ पे हमने उसको न्यूट्रल किया, यहाँ पे हमने उसको 1 कर दिया. हमने 1 किया है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि दैट वी हैव डिवाइड दिस वैल्यू 0.003 बाय द सेम वैल्यू दैट इज 0.003. हमने क्या किया है, हमने इस सल्फर की वैल्यू को 0.03 को उसके सेम वैल्यू के साथ में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, जिससे ये 1 हो गया. लेकिन हमने ये चेंजेस सल्फर में किया, इसके मोल्स को हमने चेंज किया. सो इट विल अफेक्ट फॉर द बैलेंसिंग पार्ट, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, बाकी जितने भी एलिमेंट्स है उसमें भी वो चेंजेस आ जाएंगे. सो अगेन वी विल कैलकुलेट जस्ट लाइक हमने इसमें भी किया है, नाइट्रोजन के लिए हमने न्यूट्रल किया, वैसे ही हम क्या करेंगे, हम लोग आपका सल्फर के रिस्पेक्ट में भी इसको हम लोग चेंज करेंगे. ओके, ये 2 चेंजेस हमने यहाँ पे कर दिया, वंस फॉर नाइट्रोजन अनदर फॉर सल्फर. नाउ द केमिकल फॉर्मूला विदाउट सल्फर आर, केमिकल फॉर्मूला विदाउट सल्फर आर. अब देखो क्या क्या है, क्या क्या हमने निकाला है, हमने निकाला है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर. यू इग्नोर दिस पार्ट ऐश, ये कोई केमिकल कंपोजिशन में नहीं आएगा, राइट. हेलो, अच्छा, हेलो, स्वाति मैम नहीं आई है. हाँ हाँ, फॉर्मूला बेस्ड. हाँ ऐसे नहीं किया हमने मैं तो थोड़े. ठीक है मैं तो सो केमिकल कंपोजिशन में आप इसको इग्नोर कीजिए, दिस इज नॉट अ केमिकल पार्ट, दिस इज द केमिकल एलिमेंट्स which we have to take in this. So as per this, the chemical formula without sulfur are C59H93O37 and N1. ये कहाँ से आया, C59, you have to take a whole number यहाँ पे, C59H92O37 N1. Similarly you can see C59H93O37 and N. ठीक है, ये वैसे ही आया. नाउ इफ यू टॉक अबाउट विद वाटर, सो विद वाटर इज दिस C59H154 O68 N1 and S1. ठीक है, तो S तो हमने इग्नोर कर दिया, तो आपका जो कुछ बचा हुआ, दिस इज द केमिकल कंपोजिशन C59H154 O68, ठीक है, N. So the chemical formula without sulfur are like this, and if we consider the chemical formula with sulfur, so this will be, you can see here whole number you have to take, so you can round off that. तो 655 है तो 656 भी आप कर सकते हो उसे. So C656, then H1029, then O413, then N11 and sulfur 1. तो देखिए सेम जो मैंने पीछे बोला वो आ गया. विद वाटर एंड विदाउट वाटर, दैट वाज विदाउट वाटर. विद वाटर इट इज C656 H1709, then O756, then N11, then sulfur 1. ठीक है, तो ये आपका ये इक्वेशन बन गया. ओके, so this is all about the ultimate analysis part. Okay, so I'm having some work in downside, so I'm leaving now. So if anybody having any question, you can ask me, okay, or else you can leave for your next classes.